Well, good afternoon, everyone. Thank you for joining our training today. सबको शाम का सलाम कबूल हो और आपकी सबकी शमूलियत का शुक्रिया। We're going to be doing the training today from the subject of ministry team training. और आज हम अपने मजमून हिस्ट्री टीम ट्रेनिंग से कुरान की बात सीखेंगे। So this training is meant to equip every believer to be able to minister in the power of Jesus Christ. और हम सीखेंगे कि हर एक शख्स को कुरान की खिदमत में अपने आप को इस्तेमाल करना चाहिए रूह कुद्स की कुदरत से। Today we will be handling session 5 from the subject of Foundations for Power Ministry. And our subject today is about our character and our intimacy with the Lord. और हम अपने किरदार के बारे में देखेंगे कि हमारा खुदा के साथ कितने हम उसकी कुर्बत में हैं। So today we'll focus in on understanding why our character has to grow as we start functioning in the power ministry. और हम इसको भी देखेंगे कि हमारा किरदार जो है क्यों इतना अहम होता है कि जब हम खुदा की हज़ूरी और उसकी खिदमत में बैठते हैं। We need to recognize why holiness is a protection against deception. और हमें फरेब धोखाधड़ी से बचने की जरूरत है। और We need to learn why humility positions us to receive grace. और हमारी जिंदगी में हलीमी होनी चाहिए ताकि हम खुदा उनके जलाल में बढ़ने वाले। We want to understand how our character reveals what's true and what's false in our ministry. और हम इस चीज को देखना चाहिए ताकि हमारा किरदार बताए कि क्या हमारी खिदमत के अंदर झूठ और सच है। And we need to understand why intimacy with the God is the source of our power. और हमें इस चीज को भी समझना चाहिए कि हम किस तरह से खुदा की कुदरत में बढ़ते हैं इन चीजों के जरिए। So let's start by talking about our character. आए हम अपने किरदार के बारे में बात करते हैं। किरदार कितना अहम होता है। Our character has to grow before we can grow in power ministry. और हमारा किरदार भी बढ़ता है जैसे हम खुदा की खिदमत में बढ़ते हैं। And we need to seek to improve our character just as much as we seek power. और जैसे हम रूह कुद्स को हासिल करते हैं इसी तरह हमारा किरदार भी उसकी हज़ूरी में बढ़ता जाता है। Power without character is very dangerous. और रूह कुद्स की कुदरत के बगैर जो है हमारा किरदार जो है बड़ा कोई मायने नहीं रखता है। Because our character shapes how we use the power that God has given us. और हमारा किरदार जो है हमारी जो रूह कुद्स की कुदरत है उसको एक तशकील देता है कि हमारा खुदा के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। God's desire is that we are transformed into His image. और खुदा की ख्वाहिश है कि हम उसकी शबीह पर तशकील पाएं। And He desires holiness in our lives. और खुदावंद हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी चाहता है। Let us read our excerpts from Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. आए खुदावंद के पाक कलाम में से इफ्सियों के नाम को। I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has walked in love and given himself for us. And then verses 8 to 10.
For you were once darkness, but you are light in the Lord. Walk as children of the light, for the fruit of the Spirit is all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord. And that was Ephesians 4, verses 1 to 3, Ephesians 5, 1 to 2, and Ephesians 5, 8 to 10. वो बताओ आप पहली दो आयतें पांचवें बाब के अंदर। So character directs how power is expressed. और किरदार जो है बरह रास्त जो है हमारी जिंदगी की तरफ है। Holiness guards us from the enemy. और खुदावंद जो है हमारे दुश्मनों से हमें लेकर पाकीज़ा और पाक चलन बनाना चाहता है। Our holiness creates spiritual protection, और हमारी पाकीज़गी जो है हमारी रूहानी हिफाजत का काम करती है। but pride opens the door to the attack of the enemy. और जब हमारी जिंदगी में घमंड होता है तो हम दुश्मन के लिए दरवाजे खोलते हैं हमारी जिंदगी में वो आए। Let us read from James chapter 4, verses 6 through chapter 4, verse 9. आए खुदावंद के पाक नाम से याकूब चौथा बाब। But he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. ज़्यादा तौफीक बचता है इसलिए यह आया कि खुदा में लोगों को मुकाबला करता है ना रोकने को तौफीक बचता है बस खुदा के आगे हो जाओ अपनी क्षमता से सब तुमसे बात करेगा खुदा के नजदीक आओ तो नजदीक आए भाई ढूंढकर अपने हाथों को साफ करो और आए दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। Amen. Submission strengthens our resistance to the enemy. और इसी तरह से अगर हम खुदा की हाजिरी में बढ़ते हैं तो इससे हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं इससे मुसामत पैदा। Drawing near to God increases grace. और याद रखिएगा कि फरोतनी जो है खाली खुदा के को जाहिर करती है। Holiness is not separation from people. Holiness is devotion to God. और ये पाकीज़गी जो है ये लोगों से अलहदा होना नहीं होना नहीं मतलब होता इसका मतलब है खुदा के साथ चलना। This is why it's so important that we have character, because holiness shows our devotion to God, or holiness is our devotion to God. और इसीलिए हम किरदार को इस तरह से देखते हैं कि ये किरदार जो है वैसी तौर पे ये इस तरह का तल्लुक होता है कि जो हम खुदा के साथ वफादारी के साथ जो है तल्लुक कायम करते हैं यही हमारा किरदार है। So now when we are humble, it attracts God's grace to us. और जब हम हलीमी को इख्तियार करते हैं तो ये रास्ता होता है कि हम खुदा के साथ चलें। But pride blocks our spiritual growth. और लेकिन घमंड जो है मगरूरी जो है हमारे रूहानी जो है गिरावट का शिकार बनती है। Let us read from 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6. आए कुरान के पाक कलाम से पहला पत्र। Likewise, you younger people, submit yourself to your elders. लिखा हुआ है जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud but gives grace to the humble. बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो इसलिए कि खुदा मकरूरों का मुकाबला करता है मैं फरोतनों को तौफीक बख्शता है। Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. और बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। आमीन। So God lifts up the humble people. है हलीम लोगों को फरोतन लोगों को सरबुलंद करता है।
but God opposes those that are proud. और लेकिन खुदावन उनकी मुखालफत करता है जो मगरूर होते हैं। So, based on this scripture, we can understand why our character is so important for us in ministry. और यही जो हम खास हवाले के मुताबिक इस बात को देख रहे हैं कि हमारा किरदार जो है खिदमत के अंदर क्यों अहम होता है। If we are proud, that's exhibiting the character of the world. और अगर हम मगरूर हैं तो हम दुनिया में जो हमारा किरदार होता है उसका मुआयना कर रहे होते हैं। And God is actually going to resist us if we're proud. और लेकिन खुदा जो है इस बात के बारे में एक मुज़ाहमत पैदा करता है। But He gives us unmerited favor. He gives us complete favor with Him when we humble ourselves before Him. और खुदावंद हमें मदद फराहम करता है ताकि वो हमारी जिंदगी में हलीमी और फरोखनी को कायम करे। And our humility is what keeps us safe when we're working in power ministry. और जब हम रूह कुदस की कुदरत से खिदमत करते हैं तो वो इससे हमें रूहानी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। If we're proud, we're going to do things in our own strength and maybe work in the enemy's camp. और जब हम अपने दिल में तकब्बर और मगरूरी को रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी सोच के मुताबिक दुनिया में काम करने की कोशिश करते हैं। But when we're humble, we'll only do the things that the Father is sharing us to do. और हलीमी का मतलब यह है कि वो चीजें खुदा जो हमें कहता है हम वो करते हैं। दरवाजा बंद कर। And this is because spiritual power without character is dangerous. और रूहानी जो नेमतें हैं वो किरदार के बगैर जो बेमायनी होती है। Spiritual power without character leads to corruption. और रूह कुदस की कुदरत जो है जो नेमतें हैं वो बगैर किरदार के जो है मनसियत को जन्म देती है। And spiritual power is going to expose what's in our hearts. और जो रूहानी नेमतें कुव्वत है कुदरत है वो हमारे दिल के बारे में बताती है कि हमारे दिल में क्या है। Now let's return to the story of Simon the sorcerer from the book of Acts, chapter 8. आए इमाल की किताब में जो शमौन का जिक्र मौजूद है उसके बारे में देखते हैं। Now Simon was a sorcerer and he called himself the mighty power of God in Samaria. और शमौन जो है Pastor Afsal, I'm sorry I put you on mute. So Simon was considered the mighty power of God in Samaria. और शमौन जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे अपने जो कुव्वत रखता था सामरिया के अंदर। And when Philip was there working signs and wonders and miracles, Simon got saved. और जब फिलिप्स जो है सामरिया के अंदर लोगों में मुनादी कर रहा था और मौजज़े कर रहा था तो लोगों ने उन्हें सुना और उनसे इत्तेफाक किया। But even though he supposedly gave his life to the Lord and was baptized, his heart was not right before the Lord. और इससे पहले के वो अपना दिल जो है खुदा को दे। Now let's read verse 18 and 19 from Acts chapter 8. इमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत के अंदर हम देखते हैं। And when Simon saw that through the laying on of hands the Holy Spirit was given, he offered them money, saying, "Give me this power also, that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." लिखा हुआ फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें रूह कुदस पाया। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है तो उसके पास रुपए लाकर कहा, मुझे भी ये इख्तियार दो ताकि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुदस पाए। So Simon desired power without submission to God. और शमौन ऐसी कुदरत और कुव्वत को चाहता था खुदावन की हजूरी में अपने आप को बगैर अंडेले के खाली करने के बगैर। His heart was not aligned with God's Spirit. उसका दिल जो है ठीक नहीं था
और खुदा उनके साथ। So this just goes to show that power does not prove spiritual authority. और इस बात को याद रखिए कि अगर आपके पास कोई कुव्वत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास रूहानी इख्तियार है। Our character is what reveals our spiritual maturity. हमारा किरदार जो है, हमारी जो है रूहानी पुख्तगी है, उसको जाहिर करता है। True ministry is revealed by the fruit of the Spirit. और जो सच्ची खिदमत है वो रूल कुदस के फलों से जानी पहचानी जाती है। Gifts alone do not confirm the truth of the source of our power. और आपके पास अगर कोई नेमत है तो ये भी इस बात का सबूत नहीं है कि आप रूल कुदस से मांगे। So let us look at Matthew chapter 7 and see what Jesus has to say about this power ministry. आए खुदा उनके पाक कलाम से मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब देखते हैं। And let's read verses 20 through verse 23. आए इसकी 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक देखते हैं। Therefore, by their fruits you will know them. बस के फलों से तुम उनको पहचान लोगे। Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but he who does the will of my Father in heaven. लिखा हुआ कि जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे अपनी बाप की मर्जी पर चलता है। Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए। And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. और उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारों मेरे पास से चलेगा। So remember, these are the words of Jesus himself. और ये अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने खुद कहे। We see these false prophets were working many signs and wonders and miracles. और वो इस बात को भी बयान करते हैं कि बहुत से झूठे नबी जो हैं निशानात, अजायबात और मोजज़ात दिखाएंगे। But they didn't have an intimate relationship with Jesus. लेकिन हमें खुदा के साथ जो है उसके कुर्बत में रहना, यीशु मसीह के साथ जो है उसके साथ में रहना, उसकी रफ़ाकत में रहना। So they weren't doing things under Jesus's authority, they were doing them under their own authority. और इसका मतलब है कि अगर हम यीशु मसीह के इख्तियार में रहकर काम करते तो उसका मतलब है कि हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। And this is called practicing lawlessness. और ये जो है अमली खिदमत का एक नमूना है। But verse 20 says, by their fruits you will know them. और 20वीं आयत में लिखा है कि बस तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। So spiritual gifts alone do not reveal spiritual maturity. और रूहानी फलों से मुराद ये नहीं है कि आप जो है रूहानी एक जिंदगी जो है रखते हैं। Gifts have to be accompanied by the fruit of the Spirit. और ये फल जो है आपको रूहानी तौर पर एक वक्त के लिए जाहिर करते हैं। Power without fruit leads to deception. और इस तरह से बाजू का हम फलों की वजह से जो है फरेब खा जाते हैं। Our fruit reveals the condition of our heart. और हमारे फल जो हैं हमारे दिल की हालत को जाहिर करते हैं। We are commanded to cultivate both the power ministry and the fruit of the Spirit. और हमें इसी तरह से जो है रूह कुदस के फलों को बोना चाहिए और वही। Now, Paul tells us this in the book of Galatians, chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
The fruit of the Spirit reflects Christ's character. Fruit grows through relationship and obedience. So the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. और रूह के फल मोहब्बत, हलीमी और खुशी, इत्मीनान, ये सब। The fruit of the Spirit reflects Christ's character. और ये रूह के फल जो है मसीह को जाहिर करते हैं। Fruit grows through relationship and obedience to Christ. और ये फल जो है खुदा के साथ फल और उसकी फर्माबरदारी को जाहिर करते हैं। The spiritual gifts demonstrate our power. रूहानी फल हैं, ये हमारी रूह की हालत को जाहिर करते हैं, कुव्वत को जाहिर करते हैं। But fruit demonstrates transformation. और फल जो है एक तब्दीली को भी जाहिर करते हैं। Both the fruit of the Spirit and the gifts of the Spirit are necessary for a healthy ministry. और ये फल और रूहानी फल जो है खिदमत के अंदर बहुत जरूरी है। So now let's talk about our intimacy with the Lord. आए अब हम इस बारे में बात करते हैं कि हम खुदा की कुर्बत में कैसे रह सकते हैं। This intimacy with the Lord protects us from deception. और खुदा की कुर्बत में रहना इसका मतलब है कि हम इब्लीस की, शैतान की फरेब और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। Our love of the Lord produces obedience to the Lord. और खुदा के साथ हमारी मोहब्बत जो है इसका मतलब है खुदा की फर्माबरदारी को जाहिर करता है। And obedience to the Lord produces intimacy with the Lord. और जब हम खुदा की फर्माबरदारी करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा की कुर्बत में रहते हैं। Now in John chapter 14 verse 23 he promises this intimacy. और यूहन्ना के इंजील के अंदर वो इसी कुर्बत के बारे में बात करता है। Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. So intimacy is not emotional excitement. और ये खुदावंद की कुर्बत में रहने का मतलब ये जज्बात का काम नहीं है। Intimacy is shared life with God. और खुदावंद की कुर्बत में रहना इसका मतलब है कि आप जिंदगी को दूसरों तक पहुंचाते हैं। Intimacy is our relationship with God. और ये कुर्बत जो है इसका मतलब है कि हम खुदावंद के साथ कितने जुड़े हुए हैं। Because intimacy is the process by which God dwells with us and shares his love with us. कुर्बत का मतलब ये हो सकता है कि हम कितना खुदा के साथ अपने आप को उसके साथ मिला के रखते हैं, खुदावंद के साथ हमारा संबंध कितना मजबूत है And we obey him. और हम उसकी फर्माबरदारी करते हैं। This protects the believer from Satan's strategies. और ये जो है ईमानदारों की हिफाजत करती है गुनाह के खिलाफ। We find out that even Jesus himself, all of his ministry flowed from the Father's love. और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद अपनी खिदमत के अंदर खुदा की मोहब्बत का जिक्र किया है। Jesus did not minister independently. और यीशु मसीह ने जो है खिदमत का आगाज बगैर मोहब्बत के नहीं। His ministry flowed from relationship with the Father. और उसकी खिदमत जो है ऐसी खिदमत थी जिसमें खुदा के साथ तल्लुक को जाहिर किया गया।
John chapter 5, verse 19 and 20 shares this truth. और यूहन्ना 5वां बाब और 15वें के अंदर इस तरह का मौजूद है। Then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मेरा बाप बेटा खुद जो है कुछ नहीं कर सकता। और उनसे कहा कि मैं सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता, सवाल की कि जो बाप करते हुए देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी इसी तरह करता है। For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than these, that you may marvel. इसलिए बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम तअज्जुब करो। So Jesus acted from his intimate relationship with the Father. और यीशु मसीह ने उस इख्तियार को बयान किया और खुदा के साथ जो तल्लुक था उसको यहाँ पर बयान किया। This love of God was the source of his revelation. और ये खुदा है उसके मुकाशे का जरिया है। Love was the source of his power. और वो है और कुदरत के जरिया है। Jesus' authority flowed from that relationship with the Father. और यीशु मसीह के पास प्यार था और वो प्यार से उसने अपने खुदा के साथ रखा। In the same way, our ministry flows from the Father's love. और हमारी खिदमत भी जो है बाप के साथ हम इसलिए बोली जाए। The Father's love is the same source of our power as it was for Jesus. और जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने बाप के साथ संबंध को मजबूत रखा, हमारी और खिदमत के अंदर भी वो इसी तरह से जरूर मतलब इन्वॉल्व होने चाहिए। We minister because the Father loves us and we want to share that love with other people. और हम इसलिए खिदमत करते हैं क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और इसी मोहब्बत को हमें दूसरों के साथ भी पहुंचाना चाहिए। In John chapter 16, verses 26 and 27, Jesus shares this intimacy. और यूहन्ना के 16वें बाब के अंदर इसी के मतलब के बारे में लिखा हुआ। In that day you will ask in my name, and I do not say that I shall pray the Father for you, for the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came forth from God. और अगर हम खुदा के बाप का मिली देखते हैं तो लिखा कि दुख तो बाप का है, वो मेरा है और मैंने कहा मुझसे हाथ में करता खबर दे। The Father's love gives us confidence in prayer. और खुदा का जो मोहब्बत है वो हमें दुआ में जो है कुव्वत अता करता है, इत्मीनान अता करता है। The Father's love removes fear. और खुदा की मोहब्बत जो है हमारी जिंदगी में से खौफ को खत्म करती है। Our ministry is not something that we have earned. और हमारी खिदमत ये नहीं है कि जो हमें हासिल हो जाता है, जो हम कमा लेते हैं वो होती है। Our ministry is a result and flowing out from our relationship with God. और हमारी खिदमत ये होनी चाहिए कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है, हम खुदा उनके साथ जो है किस तरह की जिंदगी जो है गुजारते हैं, किस भाव में रहते हैं। So the love of the Father is our security. और खुदा की मोहब्बत जो है हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी। Our security does not come from our performance for God. और ये हिफाजत जो है हमारे अपनी जो काम होता है उसकी बिना पे नहीं मिलती। Our security comes from God's love. और हमारी जो हिफाजत है खुदा की तरफ से है, खुदा की मोहब्बत के साथ। Let's read from Romans chapter 8, verses 38 to 39. आए खुदा उनके पाक कलाम में से रोमियो 8 बाब और उसकी 38वीं आयत में देखते हैं।
For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. मुझ प्रीति में खुदा की जो मोहब्बत हमारे यीशु मसीह में है, उनसे हमको न मौत जुदा कर सके न जिंदगी। तो कृष्ण ने हुकूमत न हाल की, न इस्तेबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। Nothing can separate us from God's love. और हमें कोई भी खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। This confidence stabilizes the believer. और ईमानदारों को यही ईमान जो है मजबूत करता है। Secure believers do not strive to gain God's approval. और यही वजह है जिसकी वजह से ईमानदार जो है खुदावंद से दूर नहीं जाते। Secure believers freely serve the Lord out of his love. और जो महसूस होते हैं, जो अपने आप को खुदावंद की हिफाजत में पाते हैं, वो बड़ी दिलजमी के साथ खुदावंद की खिदमत करते हैं। You see, the Father's love is the source of our holiness. और खुदावंद की मोहब्बत जो है हमारी पाकी मंबा है। Holiness flows from God's love. और ईद भी जो है खुदावंद की मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई है। And our sanctification begins with God's initiative. और हमारी पाकीज़गी जो है खुदावंद के साथ है। Let's read from 1 John chapter 4, verse 10. आइए खुदावंद के पास में से पहला यूहन्ना चौथा बाब। In this is love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be propitiation for our sins. और जो मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के बारे के लिए अपने बेटे को भेजा। God loved us first. और खुदा की मोहब्बत जो है बड़ी है। God acted first. और खुदा ने सबसे पहले हमसे मोहब्बत रखी। Our response to love produces holiness. और उसकी मोहब्बत का जवाब जो है हमारी पाकीज़गी होना चाहिए। Because the Father's love is the source of our identity as Christians. और मसीह में हमारी शिनाख्त जो है खुदा की मोहब्बत है। Our identity is rooted in God's love. और हमारी शिनाख्त ये हमेशा है कि हम खुदा के इरफान के जलाल में हैं। We are defined by our adoption by God, not our achievements for God. और हम जो खुदावंद से हासिल करते हैं वो हमारी पहचान होनी चाहिए, ये नहीं कि हम जो करते हैं। 1 John chapter 3 verse 1. पहला यूहन्ना Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know him. We are children of God. हम खुदावंद के बच्चे हैं। This identity shapes our ministry. और ये शनाख्त जो है हमारी ये बात जो है हमारी शनाख्त को तश्कील देती है। Secure identity as children of God produces our authority through our humility. और जो महफूज होते हैं, जो खुदावंद के पैरों के नीचे रहते हैं, उसके मतलब ये है कि हम उस इख्तियार को खुदावंद में पाते हैं जो खुदावंद हमें चाहता है। Children of God serve without fear. और खुदा के लोग जो है खुदावंद के जो बच्चे होते हैं वो बगैर डर और खौफ के खिदमत करते हैं। So let us summarize today's lesson. आए
आज के सबक का हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं। Our character must grow along with our power. और हमारा किरदार जो है उसकी कुवत के साथ बढ़ना चाहिए। Holiness protects us as believers. और जो पाकीज़गी है ये हमें एक ईमानदार के तौर पर हमारी हिफाजत करती है। Humility attracts God's grace to us. और हलीमी जो है हम खुद जब हमारी जिंदगी में हलीमी होती है तो हम खुदा उनके पार में बढ़ते हैं। But power without godly character corrupts us. और जो हम कुवत हासिल करते हैं किरदार के बगैर है तो बेईमानी। We want to test if someone is a true minister by the fruit of the Spirit, not the gifts of the Spirit. और जो रूप के फल हैं उनके जरिए जो है हमारे किरदार की तशकील होती है, उसकी शिनाख्त होती है, ना कि उनके रूहानी फल होते हैं। Because this intimacy with Jesus guards us against deception. और एक बाज़ जो है इन्हीं की वजह से हम धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। So Jesus himself ministered from the Father's love. और यीशु मसीह ने खुदा की मोहब्बत से अपनी खिदमत का आगाज की। So we also minister from the Father's love. और हम भी खुदा उनकी मोहब्बत से जो है उसकी खिदमत का आगाज करते हैं, उसकी खिदमत को करते हैं। The Father's love gives us security. और खुदा की मोहब्बत जो है हमें हिफाजत मुहैया करती है। The Father's love is what makes us holy. और खुदा की मोहब्बत जो है हमें पाकीज़ा बनाती है। The Father's love defines our identity as children of God. मोहब्बत जो है खुदा के बच्चे होने के लिए हमारी शनाख्त को जाहिर करती है। So I use this example that when we function in power ministry, we don't have the power. All the power comes from God. और खुदा के बच्चे हैं, जो भी हमारे पास कुव्वत और कुदरत है वो हमारी नहीं है, बल्कि सब कुछ जो है खुदा उनकी तरफ से अता करता है। आमीन। That safe power flows from our relationship with God to the people we're praying for. और आए इस तरह से अपनी खिदमत को का जो है आगाज करने वाले खिदमत करने वाले कि हमें खुदा के साथ जो है अपने पल्ले को मजबूत करना। So we don't store up power in ourselves. और हम खुद ब खुद जो है अपने अंदर कोई भी कुव्वत कुदरत को नहीं रख सकते। We have to be in relationship with God for the power to flow from God through us to the people. और वही कुदरत और कमाल जलाल को जो हमें खुदा उनसे हासिल होता है उसे अपने अंदर रखना चाहिए, वही लोगों के अंदर मुश्किल करना चाहिए। Amen. Amen. God bless you for today's teaching. आप सबको खुदा मदद कर दे आज की टीचिंग के।